The vitamins are required in a small quantity to the body. But if that small quantity of the vitamins is not hit by the body, there are certain diseases which occurs due to deficiency of the vitamins in the body. So that deficiency diseases, and when you take the overdose of vitamins, it also may create the problem. So excessive intake or overdose of the vitamins may create the problem. That problem are known as hypervitaminosis. Means due to excessive intake, some problems creates. But once you take insufficient amount of vitamins, then also it creates problem. That is known as deficiency diseases or hypovitaminosis. So in case of hypervitaminosis and hypovitaminosis, in both the cases, the person suffered or may suffered. So that's why a fixed proportion of vitamins is required in the body to regulate various biological processes, biological activities. Getting my point? So now, what are the vitamins? These are the organic compounds. Vitamins are the organic compounds. Now the organic compounds, when you learn the chemistry or might have learned the chemistry in your 10th standard or 9th standard, then you learn about the differences between inorganic and the organic molecule. The organic molecules are basically the compound of carbons, oxygen and hydrogen. And these organic molecules forms the structure of the living organism. So now these are the organic compounds and required by the body, okay, in the small amount. I have mentioned that, not in a large amount, a small amount, but that a small amount is very essential for metabolism. Metabolism means life processes. And already I had discussed that there are two kind of metabolic functions is going on in the body. One is catabolic processes, where a complex molecule breaks down into the simpler one, and another one is anabolic process, where the simpler molecule converted into the complex one. I had given the example, the cellular respiration, an example of catabolic process, in which the glucose breaks down into CO2 plus H2O. And what is the example of anabolism, like protein synthesis or photosynthesis? In photosynthesis, the simple compound like CO2 and H2O combine to form glucose, C6H12O6, which is a complex compound. So what we observe here that क्या यहाँ दिखा कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक जहाँ की छोटे मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जहाँ कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है. तो बनने की प्रक्रिया एनाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन की प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म, दोनों को मिलकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सो मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर द प्रोटेक्शन and for maintenance of health and the proper growth, these vitamins are again required. So vitamins improve our immunity, it protects from the antigens, it strengthens our immunity. So not only to regulate the metabolic process the vitamins are required, but to strengthen our immunity it is also required, as well as for the growth and maintenance of the cell. The vitamins is required in a small quantity for in our body, and they cannot be synthesized in the human body, in the animals. ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते, बनते नहीं है, तो हमें एक्सटर्नली लेना होता है. बट इन द प्लांट्स दे कैन सिंथेसाइज. प्लांट सेल्स में, प्लांट टिश्यूज में ये बनते हैं. तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को बाहरी सोर्सेस से लेना होता है.
तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो इन ह्यूमन वी नीड द विटामिन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस। तो कई बार क्वेश्चन सोर्सेस के ऊपर भी आता है कि इन व्हाट सोर्सेज द विटामिन ए इज प्रेजेंट। से फॉर एग्जांपल आप कहते हो कैरेट में मिलता है, बचपन से याद रखा है कि गाजर में मिलता है। तो क्यों याद रखा है? क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, बिकॉज सोर्सेज आर ऑलवेज एक्सटर्नल फॉर द ह्यूमन बीइंग, because it cannot be produced or synthesized in the human body. You should keep in mind. But in plant it can be. तो गाजर से ले रहे हो यानी गाजर में उपलब्ध होगा तभी तो ले रहे हो ना विटामिन ए। तो ये समझना है कि प्लांट में फॉर्मेशन होता है बट किस में नहीं होता? ह्यूमन में नहीं होता। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड and must be obtained from outside sources, like you can take in diet, vitamins आप ले सकते हैं, you can maintain it in the diets। आप ग्रेन्स लीजिए जो विटामिन रिच हैं, जैसे पल्सेस विटामिन रिच है। उसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, देर आर वेरियस सोर्स, वेजिटेबल्स। ओके, तो डाइटरी सोर्सेज है। द रुमेन ऑफ द बैक्टीरिया, अभी लिखेंगे द रुमेन ऑफ द कैटल्स, व्हेन यू लुक एट द कैटल्स, इन द रुमेन ऑफ द कैटल्स और इन द गट ऑफ आर गट। अगर हमारे गट की बात करें और रुमेन ऑफ कैटल्स की बात करें, कैटल में क्या होता है कि जो स्टमक होता है वो यूनिक होता है, उसके कई पाउचेज होते हैं, कई सेगमेंट होते हैं। उसमें एक सेगमेंट है रुमेन, एब्डोमेन का एक सेगमेंट है, पेट का एक हिस्सा है कैटल्स के अंदर, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। उसी तरह हमारी गट में भी, ठीक है ना, हमारी माउथ कैविटी और गट में भी बैक्टीरियाज होते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया में सिंथेसाइज लिटिल अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स, वो सिंथेसाइज या फॉर्मेशन करते हैं। सो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, वो हमारे शरीर में रह रहे होते हैं और हमें बदले में विटामिन्स दे रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं लिटिल अमाउंट में, बट लार्जली वी टेक द vitamins from the outside sources, and sun is also the source of the vitamin D. As you know, one vitamin which can be synthesized in our body in the presence of sunlight, that is the vitamin D. So what are the sources? One is the diet, means outside sources में भोजन के थ्रू ले सकते हो। सेकेंड, मैंने कहा रुमेन में, कैटल्स के रुमेन में, एब्डोमेन में बैक्टीरिया होती हैं, या फिर हमारे गट्स में होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, और वो बैक्टीरिया भी कुछ अमाउंट में विटामिन सिंथेसाइज करते हैं, बट लार्जली ह्यूमन में विटामिन सिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, और थर्ड सोर्स है sunlight. In the presence of sunlight, one specific vitamins can be synthesized in our body, that is vitamin D. वो है विटामिन डी जो कि हमारी बॉडी में सनलाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस होता है। तो ये पता लगा या आपको ये इंफॉर्मेशन दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट, अभी समझे। फिर मैंने यहाँ लिखा है vitamins also assist in the formation of hormones, blood vessels, nervous system, chemicals and genetic materials। अब देखो, कुछ vitamins ऐसे हैं जो क्या फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं? हार्मोन फॉर्मेशन में, हार्मोन्स के बनने में। अभी हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अभी मैं इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के डिफरेंसेस भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो इन आवर बॉडी देयर आर टू काइंड ऑफ ग्लैंड्स, वन इज एक्सोक्राइन, अनदर इज इंडोक्राइन। एक सिंपल बेसिक डिफरेंसेस है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, ठीक है ना, और ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट पर एक्ट करते हैं।
लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनमें जो सिक्रीशन है, जो केमिकल्स निकलता है उन ग्लैंड्स से, उन ग्रंथियों से, दैट इज नोन एज जूस और इंजाइम्स। मैंने बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, उसे इंजाइम या जूस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सैलिवरी ग्लैंड इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ से सलाइवा निकलता है, सलाइवा इज एन एंजाइम और अ जूस। जैसे पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूसेस निकलते हैं, वो एंजाइम उसमें कई तरह के होते हैं, फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ जो ये निकलते हैं एंजाइम्स, वो ट्यूब के थ्रू अपने टारगेट सेल तक काम करते हैं। जिस सेल को एक्टिव करना हो, ट्रिगर करना हो, ट्यूब के थ्रू ये जाएंगे वहाँ। लेकिन हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में जाता है और अपने टारगेट सेल्स को एक्टिव करने के लिए वहाँ तक ब्लड के थ्रू पहुँचता है। ये एक बेसिक डिफरेंसेस है इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि वाइटामिन्स का रोल क्या है। मैंने पहली चीज कहा कि व्हाट आर वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके, which is required for the human or animals in a small quantity, but that small quantity is very much important, because due to lack or deficiency of vitamin, the animal or the human being suffer with the deficiency diseases. Even the over intake of the vitamin or overdose of vitamin may create or may pose the problem in the human being or the animals. Next, what I have said, that in human the vitamins cannot be synthesized. Always it can take from the external source, and that's why what are the sources for the human being for the vitamins? One is the diet, the fruits, vegetables, grains, pulses, milks, eggs, etc. What are the another sources? The another sources, some symbiotic bacteria are living in the gut of the human and the cattle's, and that bacteria at certain extent forms and synthesize the vitamins in the body. And third is the sun, the solar radiant energy, okay, also help to synthesize the vitamins in the human, that is vitamin D. Okay, now what is the requirement? Requirement is for the formation or synthesis of hormones. Requirement is for the formation of certain chemicals and genetic materials like DNA, RNA, these are the genetic materials. अब इनके लिए भी चाहिए होगा, ठीक है, अभी देख कुछ केमिकल्स जो इनके फॉर्मेशन में हेल्प करे, उसके लिए विटामिन्स चाहिए आपको। फिर मैंने कहा था टू फॉर्म द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं, प्योर और इम्प्योर ब्लड्स फ्लो इन डिफरेंट, वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज में प्योर, उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल आर्टरीज हैं जहाँ इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं और कुछ एक्सेप्शनल वेन्स हैं जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करते हैं, वो मैं फर्दर बताऊंगा। तो इनके फॉर्मेशंस के लिए भी विटामिन्स की ज़रूरत होती है, एंड फॉर द नर्वस सिस्टम एंड टू बिल्ड द इम्यूनिटी फॉर द प्रोटेक्शन, ओके, इसके लिए भी ज़रूरत होती है। फिर अभी देखो, द विटामिन्स ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है, खुद रिएक्शन में कॉन्ज्यूम नहीं होते कैटलिस्ट, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक, अब जब केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, ये खुद कॉन्ज्यूम नहीं होते, लेकिन इनके प्रेजेंस से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, या जब स्लो करने की बात आएगी तो ये स्लो कर देंगे। तो उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम करता है ये विटामिन्स हमारी बॉडी में, या तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है और या तो स्लो कर देता है, ये दोनों टास्क करते हैं कैटलिस्ट। खुद कॉन्ज्यूम नहीं होते, खुद खत्म नहीं होते, वो जितना अमाउंट रहेगा वो उतना ही अमाउंट रह जाएगा, बट वो दूसरे को एक्टिवेट कर देगा, या तो रेट बढ़ा देगा या स्लो कर देगा, यही कैटलिस्ट का काम होता है।
So the vitamins also act as a catalyst in the metabolic reactions, okay, which occurs in the body of the animals as well as in the plants. And without enzymes, what I have written here, many of the essential reactions to the life would slow down or cease. अगर ये नहीं रहे तो बहुत सारी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी बॉडी की, या फिर रुक जाएगी, सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी. ठीक है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द वाइटामिन्स. होप यू मे अंडरस्टैंड. आप सभी समझ गए होंगे. कोई डाउट्स है तो पूछो, फिर आगे बढ़े. इज देयर एनी डाउट? है कोई? नहीं? यस और नो बोलना है. ओके, लेट्स now the composition. अब अगर तुम डिफरेंट वाइटामिन्स को पढ़ो, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स हैविंग 12 विटामिन्स, B1, B2, B3, B4, B5, B6, इस टाइप से, then C, D, E, K, all these vitamins. Now when you look at the vitamins, they have the different chemical nature. इनका chemical composition सबका अलग अलग होता है. ठीक है ना, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन. कुछ में अल्कोहल ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहल यानी OH ग्रुप्स, ओके. कुछ में एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, CHO ग्रुप, ऐसा एल्डिहाइडिक. कुछ में ऑर्गेनिक एसिड होता है, COOH ग्रुप, आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में. और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, एस्टर्स भी होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स होते हैं. ठीक है ना. तो केमिकली दे वेरीज. ठीक है ना. मैंने क्या बताया, कुछ में अल्कोहल ग्रुप, कुछ में एल्डिहाइडिक ग्रुप, कुछ में एसिडिक ग्रुप होते हैं. ठीक है. तो इट में वेरीज. तो केमिकल कॉम्पोजिशन सभी विटामिन्स का एक नहीं होगा. ठीक है ना. अभी मैं बताऊंगा, अभी केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे. ठीक है ना. तो आपको समझ में आएगा क्लियरली. अब देखो, क्लासिफिकेशन के ऊपर आओ. तो मैंने बताया कि वी कैन कैटेगराइज और क्लासिफाइड द विटामिन्स बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी. इनके सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू कैटेगरी, द फैट सॉल्युबल एज वेल एज द वाटर सॉल्युबल. नाउ द फैट सॉल्युबल मीन्स दे कैन इजिली डिजॉल्व इन ऑयल्स, ओके. तो उसमें लिपिड्स में, ऑयल्स में या डिजॉल्व हो सकते हैं, फैट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं. तो दूसरी बात है, क्योंकि ये फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. सो मैंने क्या लिखा, दीज आर ऑयली एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स. हाइड्रोफोबिक मैंने बताया था, वाटर रिपेलिंग, दे वोंट लव वाटर, वाटर को रिपेल करते हैं. ठीक है ना. जैसे ऑयल में वाटर ड्रॉपलेट डालो तो वो ऊपर ही जमा हो जाता है, क्योंकि ऑयल हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को डिजॉल्व नहीं करता. ठीक है. तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, द फैट सॉल्युबल विटामिन. ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, इसीलिए ये फैट सॉल्युबल है, ऑयली है, ओके. एंड दे आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते. कहाँ स्टोर होने लगते हैं? व्हेन यू टेक द ओवरडोज ऑफ विटामिन विच इज सॉल्युबल इन फैट. अगर तुम इसका ज़्यादा मात्रा ले लो अपने डाइट में, तो ये धीरे धीरे विटामिन कहाँ जाकर स्टोर होगा? तुम्हारे लीवर में. क्यों? क्योंकि आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा. हमारे शरीर से बाहर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स निकल जाते हैं थ्रू स्वेट और थ्रू यूरिन. पसीने के थ्रू या यूरिन के थ्रू वाटर सॉल्युबल विटामिन बाहर निकल जाते हैं. अगर आपने ओवरडोज भी ले लिया तो वो फिल्टर होंगे किडनी से और यूरिन से पास आउट हो जाएंगे. बट अगर तुम एक्सेसिव इनटेक कर लेते हो, ओवरडोज ले लेते हो विटामिन विच इज फैट सॉल्युबल, और मैं बताऊंगा अभी फैट सॉल्युबल कौन कौन सा विटामिन है, तो वो धीरे धीरे एक्सेसिव ओवरडोज के कारण वो लीवर में स्टोर होगा. तो ये याद रखना, दिस इज अगेन अ प्री फैक्ट. ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेयर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर्ड in your body, in liver.
इसीलिए मैंने कहा कि कुछ विटामिन्स का ओवरडोज ले लिया तो वो हानिकारक भी है, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा, ये बाहर नहीं निकलेगा शरीर से, क्यों? क्योंकि ये फैट में डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व ही नहीं है। और हमारे शरीर से बाहर क्या निकल रहा है? यूरिन या स्वेट निकल रहा है, तो उससे नहीं निकलेगा। फिर आगे लिखा है द बाइल सॉल्ट्स एंड द फैट्स आर नीडेड फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपके लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल को हिंदी में पित्त कहते हो। तो लीवर जो है ऑर्गन ह्यूमन का, उस लीवर में, ठीक है, क्या फॉर्मेशन होता है? इस लीवर में फॉर्मेशन होता है बाइल का। बाइल इज अ जूस, और ये इस हिपैटिक डक्ट के द्वारा, ये लीवर का जो पाइप है, मैंने हमेशा कहा कि जब भी जूस बनेंगे या एंजाइम, वो पाइप के थ्रू अपने टारगेट तक जाते हैं। लीवर में एक पाइप होता है, इसे हिपैटिक, हिपैटिक वर्ड आएगा तो समझना लीवर के लिए है। हिपैटिक डक्ट के थ्रू क्या होता है, ये आ जाता है, एक ऑर्गन होता है आपका ऐसा, ड्रॉप, कभी यूज किए होगे इंक के लिए, बहुत छोटा सा ऐसे ड्रॉप टाइप का होता है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। ये गॉल ब्लैडर में आकर बाइल जमा हो जाता है। गॉल ब्लैडर का केवल फंक्शन है बाइल को स्टोर करना। बाइल फॉर्मेशन देखो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, बाइल का फॉर्मेशन लीवर में हुआ। क्या हुआ? द बाइल फॉर्म्स इन द लीवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में आकर स्टोरेज हो जाता है इसका, ठीक है। और फिर जब इसकी जरूरत होती है बाइल की, बाइल की जरूरत कहां होती है? फैट डाइजेशन में। मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप जो फैट खाते हो ना, फैट बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो जल्दी नहीं डाइजेस्ट होते। तो फैट को डाइजेशन के लिए एक्सेसिव वर्क करना पड़ता है। फैट के डाइजेशन के लिए बाइल की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही तुम्हारे फूड में फैट ज्यादा होगा और जैसे ही वो पहुंचेगा स्टमक से इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन का पहला जो रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। एज द फूड having the fat, means as the fatty foods reaches in your duodenum, तो उसी समय बाइल इधर से रिलीज होगा गॉल ब्लैडर से, जहां वो स्टोर करके रखा है, और फिर वो बाइल आकर फैट मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाइल बाइंड कर जाते हैं। बड़ा सा ये फैट मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे बाइल बाइंड करेंगे, बाइल इसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फैट को। जब तक ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे, तब तक इस पर फैट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अगर इस पे एक्ट भी करे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये फिर एंजाइम इस पे एक्ट करता है और ये फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये प्रोसेस है। मैंने यूज किया बाइल सॉल्ट। अब ये जो बाइल है उसमें कुछ सॉल्ट भी होते हैं, और बाइल में कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं जो कलर भी देते हैं। जैसे तुमने सुना होगा लोगों को जॉन्डिस होता है, पीलिया एक बीमारी है, जॉन्डिस। हैव यू हर्ड अबाउट जॉन्डिस? आपने सुना है ना इस बीमारी के बारे में? इसमें क्या होता है कि जब पिगमेंट्स हमारे लीवर में बनते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, और ये जो है, अगर जॉन्डिस का जब सिम्टम आता है तो उसमें क्या, डॉक्टर अगर ब्लड सैंपल लेता है तो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जो कि बाइल सॉल्ट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ठीक है, कलर देते हैं, वो ब्लड में दिखाई देने लगते हैं। आपकी आई येलो होने लगती है, जो कि इनका कलर येलो होता है। ये पिगमेंट येलो कलर के होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, और इसीलिए आपके आंख पीले, स्किन पीला नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मैंने क्या यहां लिखा कि द बाइल सॉल्ट्स, ओके, एंड द फैट्स
are needed for their absorption. Little amount of boiled salt is required in your body as well as fat is required in your body to absorb the fat soluble vitamins. फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्प्शन के लिए इनकी जरूरत है, ठीक है, किसकी? बाइल सॉल्ट की और फैट की, क्योंकि ये फैट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं? ए, डी, ई एंड के। Only vitamin B complex and C is the water soluble vitamin. The rest, vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K are the fat soluble vitamins. Okay, now so water soluble vitamin B complex. B complex क्यों कहा? क्योंकि इसमें कई B हैं, B1, B2, B3, there are complex vitamin system. And the vitamin C, these are water soluble, हाइड्रोफिलिक हैं, ये वाटर soluble हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, and they are not stored in the body because when you take it excessively it release through the urine and the sweat. What I have said, ये वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, तो एक्सेसिव ले भी लिया तो ये यूरिन से पास आउट हो जाएंगे, तो ये स्टोर नहीं होते। बट फैट सॉल्युबल विटामिन में मैंने बताया था इट कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर, ओके, व्हेन यू टेक एक्सेसिवली, एंड दिस डिफरेंसेस यू शुड कीप इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा भी आगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, यहाँ ये स्लाइड क्लियर हुआ? फाइन, लेट्स मूव। So what I have mentioned here, I had categorized that the fat soluble vitamins are A, D, E and K, and it can be stored in the tissues, basically the hepatic tissues or the liver tissues. And the water soluble not stored in the tissues must have constant supply, इसलिए इसकी लगातार ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि ये स्टोर है और ज़रूरत पड़ने पे मिल गया, ठीक है, इसकी हमेशा ज़रूरत होगी और इसको सप्लाई करना होगा। और ये क्या है? B1, B2, B3, B4, B6, B12, दिस आर द फॉलिक एसिड, C, दिस आर द वाटर soluble vitamins. अब वन बाई वन हम देखेंगे द फैट soluble vitamins. Let's start with the vitamin A. This is the complex structure. ये देख रहे हो, बीटा कैरोटीन, ओके। अभी देखो रेटिनॉल, अभी देखो विटामिन ए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और उसको बहुत केयरफुली सुनना। दो तीन स्ट्रक्चर, इसका एक खास स्ट्रक्चरल पैटर्न है विटामिन पे क्वेश्चन आने का। एक तो पूछेगा तुम्हारा विटामिन का केमिकल नेम, ठीक है ना, जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल। तो जहां भी ये टर्म दिखाई देगा रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल, वहां टिक लगाएंगे, दैट इज विटामिन ए। मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अपीयर द केमिकल नेम ऑफ अ विटामिन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, द सोर्सेज फ्रॉम विच वी टेक द विटामिन्स। फूड में कहाँ से मिलेगा या और क्या सोर्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? द फंक्शन ऑफ विटामिन्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट आई हैव सेड, द केमिकल नेम। सेकेंड व्हाट आई हैव सेड, द सोर्सेज थ्रू विच वी कैन गेट। थर्ड क्वेश्चंस क्या आते हैं व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन ऑन विटामिन्स? थर्ड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ विटामिन्स। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? डेफिशिएंसी डिजीज, कमी हो जाए तो क्या बीमारी होगी विटामिन्स की कमी से। और फोर्थ, कुछ खास विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल हैं वो जब एक्सेसिव होते हैं तो उनसे भी बीमारियां होती हैं, उन पर भी प्रश्न कभी कभी आते हैं। तो यही स्ट्रक्चर के थ्रू हम विटामिन्स पढ़ते हैं।
तो चलो विटामिन ए के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बताऊं कि विटामिन ए के बारे में जब आप पढ़ोगे तो क्या चीजें दिमाग में रखो। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां पर कि दिस विटामिन इज pale yellow, primarily alcohol derived from the carotene। बोला है कि इसका जो कलर है वो हल्का येलोइश कलर होता है, पेल येलो कलर होता है, ठीक है ना। But that is not very important questions for you, but you just, if you are reading, you just keep in mind। एंड ये यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ये अल्कोहल के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। और द अल्कोहल डिराइव फ्रॉम द कैरोटीन, ये देखो कैरोटीन है, अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको कैरोटीन कहते हैं। इट इंक्लूड्स रेटिनॉल, इसका अल्कोहलिक फॉर्म जहां OL लगा होता है, रेटिनॉल में OL लगा है, ठीक है। इसका मतलब है यहां OH ग्रुप है, ठीक है। जैसे देखो ये रेटिनॉल है, यहां OH ग्रुप है। सेकेंड इसका फॉर्म है रेटिनल या रेटिनल डिहाइड, इसी को रेटिनल कहते हैं। रेटिनल जब अल होगा तो इसका मतलब एल्डिहाइड, CHO ग्रुप लगा हुआ है। मैं थोड़ा समझा रहा हूं केमिकली। और तीसरा है रेटिनोइक एसिड, इसका एक फॉर्म जिसमें COOH ग्रुप, एसिडिक ग्रुप लगे होते हैं। तो क्या है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? इधर द रेटिनॉल और द रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, ये दोनों रेटिनोइक एसिड ही हैं, दोनों में COH ग्रुप है। So this is the chemical name of vitamin A. It is the derivative, it is the product of carotene। कैरोटीन के साथ इसका अल्कोहल डेरिवेटिव या एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव है, इसमें OH ग्रुप लग गया, इसका फॉर्मेशन हो गया ऑल में रेटिनॉल, कैरोटीन से बनते हैं। तो आपने सुना होगा कैरेट में कैरोटीन होता है, ठीक है ना, इसलिए कहते हो कि उसमें क्या होते हैं, विटामिन ए। तो केमिकल नेम पता लगा क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल और रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। तुम देखना पहले प्रश्न आ चुके हैं रेटिनॉल के ऊपर, तो यू मस्ट कीप इन माइंड दिस इज द केमिकल नेम। और मैंने आपको बताया कि ये याद रखने की जरूरत है। अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि हम लोग पढ़ेंगे इसका सोर्सेस, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस, फिर क्या पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस। सोर्सेज अगर तुम देखोगे विटामिन्स का तो कहाँ मिलते हैं विटामिन ए? जैसे मैंने बताया कैरेट, फिशेस, मिल्क देयर ऑल्सो, एंड द ऑयल्स, in the oil also you get the vitamin A, in the fishes you also get the vitamin A, in the carrot you also get the vitamin A, getting my point? In butter, okay, you also get. So there are multiple sources of the vitamin A। मैं अगर यहां कुछ सोर्सेज नोट करा दूं आपको, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, डेफिशिएंसी यानी कमी, डेफिशिएंसी मींस कमी, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होंगे? यस, नाइट ब्लाइंडनेस,
वेरी गुड। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं रतौंधी, जैसे जैसे अंधेरा होने लगेगा तो फिर क्या होगी, विजन्स अफेक्ट होगा। और क्या होता है, एक और बीमारी होती है, उसे कहते हैं जेरोप्थेल्मिया। दिख रहा है यहां मैं लिख रहा हूं तो, जेरोप्थेल्मिया। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज, जेरोप्थेल्मिया। ये जो आई है, आई का जो वाइटिस पार्ट है, बीच में लेंस होता है ना ब्राउन कलर का, जो वाइटिस पार्ट है दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया हार्ड होने लगता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया इज नोन एज जेरोप्थेल्मिया। ये भी क्वेश्चन आता है, क्या होता है इसमें, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया इन द आई। तो आंख में जो कॉर्निया है वो हार्ड होने लगता है, वाई, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इट। So this is the deficiency diseases, xerophthalmia and the night blindness. Try to understand. Okay. तो ये याद रखोगे, सॉरी, सोर्सेज याद रखोगे। Let's move to the another. Now fat soluble vitamin. What is vitamin D? Vitamin D is known as calciferol और cholecalciferol। क्या लिखा है, calciferol or the cholecalciferol, and this name is again important. This is the structure of the cholecalciferol, cholecalciferol, cholecalciferol और simply calciferol। तो ये भी नेम आता है एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव। This is the chemical name of vitamin D. Okay, and this comprises a group of fat soluble sterol compound। स्टेरॉल compounds हैं ये, फैट soluble स्टेरॉल compounds होते हैं, आपको ये याद रखना है, स्टेरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। स्टेरॉल, दिस आर ऑल्सो एल्कोहल बट देयर इज अ चेन्ड एल्कोहल। यहाँ देखो ये OH ग्रुप है यहाँ, ठीक है। नाउ इट प्रेजेंट इन सम फूड्स, इनका सोर्स भी कुछ फूड्स है। व्हाट आर द फूड्स, एज यू नो फॉर विटामिन व्हाट यू हैव, एग योक। व्हाट आर द सोर्स, the egg yolk is the source of the vitamin D, and another source is the fish। yes of course, ये dietary source बता रहा हूँ, and apart from that sunlight which is the natural source, sunlight, this is the dietary source, diet में यहाँ मिलेंगे। what, the vitamin D। apart from that, as you know, in the milk the calcium is also present and it is made up of the calcium, cholecalciferol नाम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिल्क में भी प्रेजेंट होता है। what, this vitamins। so what are the sources I had mentioned। तो मैंने इसका केमिकल नेम बताया, ठीक है ना। and the two major physiologically relevant form of vitamin D, D2 and D3। D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसके दो फॉर्म मिलते हैं, एक ये D2, ठीक है, अर्गोकैल्सिफेरॉल, और दूसरा D3 which is cholecalciferol।
cholecalciferol. Okay, so this is the विटामिन डी के इतने फॉर्म है. अब देखो इसमें क्या है. सोर्सेस भी मैंने अभी डिस्कस किया. देयर आर नेचुरल सोर्स सन, तो सन में की एनर्जी में. एंड नाउ deficiency, when you look at the deficiency diseases, so there is a very popular disease, as you know, in the kids, rickets. नाम सुना है रिकेट्स. ठीक है, क्या होता है इनमें, बच्चों में बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं. बोन डिफॉर्मिटीज इन चाइल्ड or kids, in child. The name of a disease you have to, so in due to deficiency this disease. दूसरा क्या है, osteomalacia. What happened? The thinning of bone become weak बोन, थिन बोन. ठीक है ना, कमजोर होने लगती हैं हड्डियां, पतली होने लगती हैं, सॉफ्ट होने लगती हैं. सॉफ्ट बोन्स. ओके, ये होने लगता है. क्यों? ड्यू टू द डेफिशिएंसी. सो देयर आर टू डिजीजेस. One is a softening of bone, osteomalacia, and what is the another is rickets in the kids. Okay, deformity, bone grow नहीं करेगा ठीक से, deformities of bones. So this is the deficiency disease due to deficiency of the vitamin D. Now let's understand the next one. Now the E, tocopherol कहते हैं. Tocopherol is a chemical name of vitamin E. Tocopherol. It is also known as fertility hormone. For the fertility, this vitamin is essential in the body. And what is the chemical name? Tocopherol. Here there is a structure of tocopherol. OL है, ऑल है, OH ग्रुप है इसमें भी. ठीक है, तो फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. तुम्हें सोर्स चाहिए, डाइटरी सोर्सेस, तो कहाँ से लोगे? ये भी मिलते हैं. विटामिन फैट सॉल्युबल है तो ऑयली होगा, हमेशा ध्यान रखना. तो ऐसे सारे विटामिन्स ऑयल में तो मिलेंगे ही, फैट्स में मिलेंगे ही, बटर में मिलेंगे ही. ध्यान रखना, एक तो कॉमन बातें हैं जो दिमाग में रखना. जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, जितने भी फैटी चीजें तुम खाते हो उनमें होंगे. बटर खाते हो उसमें भी होगा, मिल्क खाते हो उसमें भी होगा, क्योंकि मिल्क से निकालते हैं बटर, एज यू नो. ठीक है, उसके अलावा ऑयल में होगा. जर्मिनेटेड व्हीट में होता है. पानी में गेहूं को डाल दो, अंकुर निकल जाता है, अंकुरन होता है जैसे चने में, तो उसमें भी होता है. ठीक है, सनफ्लावर ऑयल इज ऑल्सो अ गुड सोर्स. Sunflower oil is also a good source of vitamin E. Germinated wheat, the butter, oils, other oils. Okay, here these are the sources of these vitamins. Okay, so vitamin E is required in the human diet, but its deficiency is rare except in pregnancy condition and the newborn. बोला जनरली एडल्ट्स में इसकी डेफिशिएंसी रेयर दिखती है. कहाँ दिखाई देता है डेफिशिएंसी? इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन द प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन द न्यूली बॉर्न चाइल्ड, वेयर इट इज एसोसिएटेड विथ हेमोलिटिक एनीमिया. क्या करता है ये? ड्यू टू डेफिशिएंसी
ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं, ब्लड लॉस होता है, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक, हेम मीन्स ब्लड, लाइसिस माने ब्रेकडाउन, और एनीमिया रक्ताल्पता, रक्त की कमी। तो क्या हो गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो ब्लड क्लॉटिंग, जैसे जब हमारा फिंगर या कहीं कट जाता है तो ब्लड कुछ सेकंड्स में क्लॉट कर जाता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब एक चांसेस हो सकता है कि शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई हो। तो विटामिन ई जो है वो पहला फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई से क्या होगा, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी क्लॉटिंग से भी एसोसिएटेड है, बट यहाँ आरबीसी क्या फ्लैजिलिटी होगा, आरबीसी डेड होने लगते हैं, फ्रजाइल होने लगते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या हो जाता है, एनीमिया, क्या बोलते हैं, हेमोलिटिक, हेमोलाइटिक एनीमिया। तो याद रखोगे क्या होगी, रक्ताल्पता, हेमोलिटिक एनीमिया होगा। और क्या हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस, मसल वीक होंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो फ्रीक्वेंट आता है। नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, ओके, हेमोलाइटिक एनीमिया, रिकेट्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके अलावा बेरी बेरी, स्कर्वी, ओके, ये भी बहुत कॉमन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये मैंने विटामिन ए के बारे, ई के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। तो क्या नाम है इसका, टोकोफेरॉल, ठीक है, केमिकल नेम। सोर्सेज मैंने बताया, जितने ऑयली सोर्सेज होंगे उनमें होगा, ऑयली डाइट्स जो आप लोगे, ठीक है, इन द मस्टर्ड ऑयल, इन द सनफ्लावर ऑयल, बट सनफ्लावर में इसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा जर्मिनेटेड वीट्स में है, स्प्राउट के फॉर्म में अगर खाते हो तो मिलता रहेगा, बटर, घी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है, डिजीजेस मैंने बता दिया, हेमोलिटिक एनीमिया। नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज द विटामिन के। तो ए डी ई हो गया, एंड द लास्ट वन इन द फैट soluble कैटेगरी इज व्हाट, द विटामिन के। So let's understand K. Phylloquinone. What is the name? Phylloquinone. Phylloquinone is the name. Okay. Quinone is the name. Now, it is a anti-hemorrhagic vitamin. क्या करेगा, हैमरेज से रोकता है, एंटी हैमोरेजिक। हैमरेज में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ये ब्लड क्लॉटिंग टाइम एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। तो अभी क्या है, एंटी हेमोरेजिक है विटामिन, और कोएगुलेशन विटामिन कहते हैं। सो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्लड क्लॉटिंग ये तो बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, उसका मेजर काम है कि वो आरबीसीज को फ्रजाइल होने से बचाता है। इफ़ यू टेक कॉन्टिन्यूसली विटामिन ए तो आपकी आरबीसी इंटैक्ट होगी, एनीमिया नहीं होगा। स्पेशली विटामिन ए की डेफिशिएंसी मैंने कहा एडल्ट्स में नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के केस में होती है या न्यूली बॉर्न में होती है, तो वहाँ क्या हो जाता है, उनको हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी होती है, आरबीसी फ्रजाइल और डेड होने लगते हैं, ठीक है ना। वो अपना लाइफ साइकिल जो उनको 120 दिन का होता है उसके पहले ही डेड होने लगते हैं। लेकिन विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इसका मेजर काम क्या है, इट द मेजर काम है ब्लड क्लॉटिंग, कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन। सो इफ द डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिलेड हो जाएगा, फिर एक्सेसिव
loss of blood and there is a chances of death. So vitamin K is a complex unsaturated hydrocarbon. हमें ये नहीं जानना है unsaturated saturated पे नहीं जाएगा. What is the name? इसका नेम क्या है? तो बोला फाइलोक्विनॉन और मेनाक्विनॉन. इसके भी दो फॉर्म है, K1 एंड K2 जो यहाँ है, फाइलोक्विनॉन और नीचे मेनाक्विनॉन. तो ये दो फॉर्म है. ठीक है. कहाँ मिलेगा ये? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में. विटामिन के कहाँ मिलेगा तुम्हें? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ग्राम्स में भी मिलता है, सोयाबीन में भी मिलता है. ओके एंड ऑफ. ठीक है. So in this, these are the sources of the vitamin K, and vitamin K having two forms. One is phyloquinone, another is menaquinone. K1, K2 दो फॉर्म में रहता है. ठीक है. in diets मैंने बता दिया क्या होगा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग डिलेड होगा, बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. एंड ड्यू टू डिले ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फिर डेथ भी हो सकती है अगर टाइम पर क्लॉट नहीं हुआ. तो दिस इज ऑल अबाउट द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. ओके. ए डी ई के. ए का नाम क्या बताया? रेटिनॉल या रेटिनल या रेटिनोइक एसिड. ठीक है ना. डी का नाम क्या बताया? बोला कोले कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल. ठीक है. और क्या बताया? ई का नाम टोकोफेरॉल. के का नाम क्या बताया? फाइलोक्विनॉन और मेनाक्विनॉन. दिस आर द केमिकल नेम. सोर्सेज आई हैड डिस्कस. डेफिशिएंसी डिजीज ए ज़ेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है. डी मैंने बताया रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया. ई व्हाट आई हैव सेड हेमोलाइटिक एनीमिया. ठीक है. एंड लैक ऑफ फर्टिलिटी, बिकॉज वो फर्टिलिटी के लिए भी है रिस्पॉन्सिबल. एंड के मैंने बताया डिले ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग. So you should keep in mind apart from the sources what I have discussed. Now water soluble vitamins. Vitamin B complex. There are different form of vitamins which is present. B complex and another is the vitamin C which comes under it. अब देखो यहाँ example है the fat soluble. पहले भी characteristic देखा था कि ये fat water soluble है और इसीलिए ये एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन और स्वेट. तो इनका एक जो है कॉन्टिन्यूस इनटेक चाहिए आपको. एक्सेसिव भी होंगे तो पास आउट हो जाएंगे, इसलिए रेगुलर इनटेक चाहिए इनका, बॉडी को रिक्वायरमेंट है इसकी. एंड दे शेयर फ्यू कॉमन प्रॉपर्टीज बिसाइड्स देयर सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कॉमन प्रॉपर्टी है यहाँ? मोस्ट ऑफ दिस विटामिन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक्ट एज कोएंजाइम्स. अभी मैं बताऊंगा कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करते हैं. तो बेसिकली दे आर सपोर्टर ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स, एक्ट एज अ कोएंजाइम्स. ओके. इन द केमिकल रिएक्शन मींस दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस. व्हिच विटामिन्स? द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ओके. एग्जाम्पल क्या है? थायमीन. थायमीन किसको कहते हैं? विटामिन B1 को. Then riboflavin is the vitamin B2. Then niacin B3, pantothenic acid B5, vitamin B6 pyridoxine और pyridoxal भी कहते हैं या pyridoxamine भी कहते हैं. Biotin B7 and B12 the cyanocobalamin or simply cobalamin and the folic acid. So these are the B complex vitamin. अब देखें थोड़ा इनके बारे में. अपार्ट फ्रॉम द विटामिन सी. ओके. so let's understand. The first is the vitamin B1. What is known as thiamine. What are the source? अभी देखेंगे इसका.
तो मैंने यहाँ लिखा भी है, इट इज थायमीन। ओके, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, कलरलेस होता है ये विटामिन, जैसे विटामिन ए बताया था पेल येलो कलर का होता है, बट ऐसा इसका कलर नहीं होता कुछ भी। ठीक है, और साथ में इट इज रीडली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल है वाटर में, स्लाइटली इन इथाइल अल्कोहल, और थोड़ा सा अल्कोहल में भी घुल जाता है। बट आपसे ये पूछेंगे नहीं कि वेदर द विटामिन B1 थायमीन इज सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल और नॉट। आपसे यही जानना बस जरूरी है कि ये विटामिन जितने भी बी होते हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, एक फंक्शंस लिखा हुआ है यहाँ। एडिशन ऑफ पायरोफॉस्फेट फ्रॉम ATP converted thiamine pyrophosphate TPP the coenzyme for all decarboxylation alpha keto acids। अभी क्या है कि ये सेल्स में एक कोएंजाइम के फॉर्म में मिलता है, इतना याद रखना है। कोएंजाइम का नाम है TPP। ठीक है ना, TPP क्या हो गया, TPP थायमीन, ठीक है, फॉर P पायरो फॉस्फेट। ये थायमीन पायरोफॉस्फेट ये है मॉलिक्यूल, देखो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ, और यहाँ थायजोलियम रिंग्स है, ये स्पेसिफिक रिंग इसलिए नाम है थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये को एंजाइम है, ये कैटलिस्ट का काम करता है बहुत सारे रिएक्शंस में, वो आपको रिएक्शंस यहाँ नहीं लर्न करना। मतलब मेरा ये कहना है कि थायमीन विटामिन B1 एक्ट एज अ कोएंजाइम in the cells to perform various metabolic activity। तो ये विटामिन B1 का नाम याद रखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ विटामिन B1 का सोर्सेस क्या होगा, कहाँ से मिलेंगे ये विटामिन B1? तो ये सीरियल्स में भी होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, आपने सुना है ईस्ट, खमीर को कहते हैं, है ना। तो the yeast is a very important source of this vitamin, the vitamin B1, apart from the green vegetables and fruits। So green vegetable and fruits are other sources apart from milk। milk तो तुम कहीं भी लिख दोगे तो वो चलेगा, क्योंकि milk is the source for every vitamins। जैसे हनी, जो शहद है, उसमें लगभग सारे विटामिन्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सली कहीं भी अप्लाई कर दोगे, जहां भी आएगा आंसर्स में। उसके अलावा द सीरियल्स, द व्हीट, द राइस और द ओट्स, वट एवर यू हैव, उनमें भी मिलता है ये। ठीक है, तो दीज आर द मेजर सोर्सेस। एंड व्हाट इज द डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, बेरी। What is the deficiency disease which occur? बेरी। अच्छा, बेरी का सिम्टम क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख कम लगती है, बच्चों में भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, दिस इज द सिम्टम। When a kid is suffering with this, तो क्या होगा, उसको भूख कम लगेगी, और अभी भूख कम लगेगी, डाइट कम लेगा, तो इट अफेक्ट द ग्रोथ, इट रिटार्ड द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होगा, रिटार्ड होगा, स्लो हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्ड होगा। तो बेरी symptoms I had discussed। okay, this is again important। now B2, riboflavin, the next vitamin is the riboflavin।
राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी कोएंजाइम का काम करता है, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। किस फॉर्म में रहता है ये कोएंजाइम? FAD या FMN के फॉर्म में। इसको कहते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नो नीड टू रिमेंबर द नेम, बस याद रखना कि FAD और FMN में F है। अगर राइबोफ्लेविन तुम्हें याद है तो F देखते याद आना चाहिए कि अच्छा इसको एंजाइम में विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ विटामिन इज प्रेजेंट इन FAD एंड FMN। तो जहाँ आएगा, तो अगर तुम्हें केमिकल नेम याद है राइबोफ्लेविन तो यू कैन गेस इट। ओके, और यहाँ डाई है, डाई यानी दो, यहाँ M है मोनो, मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये कोएंजाइम्स ऐसे हमारे सेल्स में इस फॉर्म में रहता है विटामिन B2। ये बनाता है केमिकल एंड दिस केमिकल एक्ट एज अ कोएंजाइम टू रेगुलेट द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। तो राइबोफ्लेविन जो है इस फॉर्म में मिलता है। इट इज अभी अब यहाँ देख रहे हो इसमें रिंग स्ट्रक्चर है, पर इस रिंग के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं वही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इट। ठीक है ना? तो क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ FMN एंड FAD। इट इज एन कोएंजाइम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है। ठीक है ना? जब हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये कोएंजाइम्स मदद करते हैं, बहुत एसेंशियल हैं। अब है कि अगर हम सोर्सेज की बात करें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन B2? ओके, फ्रॉम वेयर यू गेट? फर्स्ट, द white part of egg is the best source. The white part of the egg is the best source of the vitamin B2, that is the riboflavin. Riboflavin का वो best part है. Then the milk, then the fruits like apple, peach, etc. These are the fruits which are good source. Liver, kidney of the animals are also the good source. Okay, so these are the good source. तो एनिमल सोर्सेस कितने सारे हो गए? तो एनिमल सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं इसके। क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीज? Deficiency diseases. One disease is known as chelosis. Chelosis. क्या बोलते हैं? Chelosis. Chelosis का मतलब क्या होता है? कभी कभी तुमने देखा होगा कि ये जो लिप जो दोनों हैं, ये ज्वाइंट यहाँ फट जाता है किनारे में। जब ये ज्वाइंट्स ऑफ द लिप्स यहाँ से फट जाएं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो, दैट इज नोन एज चिलोसिस। उसे कहते हैं चिलोसिस। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ फिशरिंग इन द कॉर्नर of the mouth is known as chelosis. उसको chelosis कहते हैं। तो ये chelosis होता है
और क्या होता है उनमें? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ओके, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी। क्या और होगा? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। आपको जलन महसूस होगी, ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन होगा। और मेजर क्वेश्चन आते हैं चेलोसिस। चेलोसिस मैंने क्या कहा? यहां फट जाना। तो ये किससे है? विटामिन B2। व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ दिस विटामिन इज राइबोफ्लेविन। अब चलो नेक्स्ट आते हैं। विटामिन B3, नियासिन और निकोटिनिक एसिड। द नेम ऑफ द B3 इज द नियासिन और निकोटिनिक एसिड। नियासिन और निकोटिनिक एसिड B3। बोला नियासिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफान। अभी इससे सिंथेसिस होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेवल पर। नियासिन और निकोटिन यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, निकोटिनिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने के लिए? NAD प्लस और NAD अभी देखेंगे, तो NAD और NADH के फॉर्म में ये रहेगा। NAD एंड NADH, ठीक है। निकोटिनामाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, तो निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, और NADH लगा इसी में, H ग्रुप लग गया, ठीक है ना। तो रिड्यूस्ड फॉर्म है इसी का। इस फॉर्म में ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। तो यहाँ लिखा है सब्स्टिट्यूटेड पाइरिडीन रिंग्स एंड NAD प्लस एक्टिवेट, ये आपको नहीं पढ़ना। तो NADH और NADP के फॉर्म में ये रहता है। अगर ये वर्ड्स आता है और पूछता है कौन सी विटामिन है, तो चूंकि सब में निकोटीन है, तो यहाँ पर मैंने कहा नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना है। तो कभी बहुत टफ नेचर का क्वेश्चन आया तो राइबोफ्लेविन से FMN FAD के ऊपर क्वेश्चन आएगा, थायमीन से TPP के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और निकोटिनिक एसिड या नियासिन से NAD NADPH या NADH के ऊपर क्वेश्चन आएगा, NADPH, ठीक है ना, या NADP के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है हियर देयर इज नियासिन विच इज प्रेजेंट, निकोटिनिक एसिड। ओके, एट दिस लेवल व्हेन आई विल टेल यू व्हाट द एक्शंस दे डिड, क्या ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन, इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड नो नीड, यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। वेन एवर इट रिक्वायर्ड आई विल टेल यू, जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा। तो नाउ व्हाट इज द सोर्सेस? अगेन व्हाट आर द सोर्स? लेट्स अंडरस्टैंड कि विटामिन जो B3 है ये कहाँ मिलेगा, सोर्सेस क्या है? सोर्सेस इज एग, सोर्सेस इज द जर्मिनेटेड ग्राम्स, अंकुरित चना जिसे कहते हो। sources is green vegetables, and pulses also, pulses. So these are the sources for this vitamins. Okay, vitamin B3. So now when you look at this vitamin B3, अब इसके बाद देखो deficiency diseases.
what it causes? It causes diarrhea. So it causes diarrhea, sometimes dysentery, अगर इसकी कमी होगी तो डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की डिजीजेस होती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ दिस विटामिन. ये विटामिन अगर लैक होते हैं तो ऐसा होता है. इसके अंदर सिम्टम नॉजिया रहेगा, बेचैनी, ठीक है, ऐसा. नाउ कम टू द विटामिन B5. इसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड. पेंटा 5 के लिए वर्ड होता है, B5 है. पेंटोथेनिक एसिड, ओके, हियर इट इज रिटन पेंटोथेनिक एसिड. एसिडिक ग्रुप है, COOH ग्रुप, ठीक है. तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बस आपको ये नेम याद रखना है. ऑल्सो कॉल्ड कोएंजाइम. Pantothenic acid is a vitamin that form an essential part of an acyl group. Okay. In the general, including the acetyl group. ये आपको जानना नहीं है. Okay. From the, so what is the function? It is pantothenic acid. The coenzyme is derived from the metabolically from ATP. Adenosine triphosphate से ये निकाले जाते हैं, ये derive किए जाते हैं chemically. क्या? विटामिन B5. इनका फॉर्मेशन किससे होता है? ATP जो बनता है उसी से डिराइव होकर ये मिलते हैं, विटामिन B5 और पेंटोथेनिक एसिड. ओके. नाउ व्हाट आर द सोर्स ऑफ दिस विटामिन? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है लीवर, इसका सोर्स है एग, इसका सोर्स है मिल्क, इसका सोर्स है फ्रूट्स, ठीक है. दीज आर द सोर्सेस ऑफ दिस पेंटोथेनिक एसिड. That is the B5. And now once you look at this vitamin, so what is the deficiency disease? Nausea, restlessness जिसे कहते हैं, sometimes vomiting, ओके, vomiting ये भी होता है इससे. So this is the deficiency disease. Now B6, पायरिडॉक्सिन और पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन. यहाँ पर देखिए दो फॉर्म है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल. Al है तो CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पायरिडॉक्सिन OH ग्रुप. अभी देखेंगे पायरिडॉक्सिन, विटामिन C. तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन 3 फॉर्म में मिलते हैं ये, ठीक है ना. एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हेल्प करते हैं. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कार्बन रिमूवल में हेल्प करते हैं. जब केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं जहाँ कार्बन रिमूव करना होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं. वहाँ ये जो है विटामिन B6 जो है, ठीक है ना, पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सामाइन या पायरिडॉक्सिल जो है ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना, विटामिन B6. अब है कि B6 का जो सोर्स होगा, व्हाट आर द सोर्स ऑफ B6? बेसिकली अगेन द सेम सोर्स. The source are the yeast, the source are the milk, the source are the egg, the source are the green vegetable. These are the major sources of this vitamin, vitamins. But यहाँ yeast है, ये important है.
बीमारी क्या होगा? कन्वल्जन, ऐसा निकल के आई ऐसे प्रोट्रूड निकाल देते हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं, कन्वल्जन, उसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस या डिजीज क्या होगा? कन्वल्जन। आंखों में गड्ढे पड़ जाना, ऐसे आंखों का बाहर की तरफ निकल जाना, इट इज नोन एज कन्वल्जन। तो दिस इज नाउ फिर बायोटीन है, बायोटीन B7। जब आप एक ज़्यादा एक्सेसिव खाते हो तो ये अफेक्ट करता है इसके एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। नेक्स्ट वाटर soluble is the B7 biotin. Okay, what is the name? Biotin. Again, it acts as a coenzyme. Now, in the carboxylation reaction, वो decarboxylation में था, ये carboxylation reaction में है। और फिर ये important point है जो question आ चुका है पहले। The biotin is also known as anti-egg white injury factor or H factor, and this is very important. What is also known as anti-egg white injury factor or the H factor. So if a person will take excessive egg white part, then it reduce the absorption of this vitamin. Okay, ये इसके absorption को affect करता है, biotin के absorption को. So it is known as this question has been asked earlier. Which vitamin is known as anti-egg white injury factor or H factor? This is the vitamin B7, the biotin. Okay, ये है biotin. तो क्या होगा अगर आप इसको इसका अगर डेफिशिएंसी होता है तो क्या होगा? ग्रे हेयर्स, हेयर फॉल, ओके, दिस इज आल्सो हैपन, एंड रिएक्शंस to deficiency. So you can take the milk, you can take the yeast milk, okay, wheat, pulses, these are the sources. Gray hair and loss, okay, as well as sometimes dysentery, due to deficiency. Now when you look at the next one, the B12 और B9 भी देख लो, B9 the folic acid, B9 the folic acid or vitamin M और vitamin BC और the folic acid. इसका जो केमिकल एक्टिव फॉर्म है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट कहलाता है, THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट. ओके, दिस इज अ कोएंजाइम आल्सो. इट derived from the vitamin folic acid, लिखा है ना, participated in the generation and utilization of single carbon functional groups, मिथाइल, मिथिलीन, फॉर्माइल, इनके बनाने में हेल्प करता है. द फॉलिक एसिड. Now folic acid, this is vitamin this B9 is also important for what? For formation of the RBCs. ये उनके लिए भी important है. So due to the lack of this folic acid, what happened? The anemia. इसके कारण anemia भी होता है, deficiency के कारण. Anemia. Okay. So this is
the vitamin B9 or the folic acid. And the last in this category is the vitamin B12, the cyanocobalamin. Why the cyanocobalamin name? Because it having the cobalt group, the metals, the cobalt. Okay, तो देखो यहाँ कोबाल्ट मेटल है, ठीक है ना, कोबाल्ट दिख रहा है यहाँ. Now, so this is the B12 cyanocobalamin. So what metal, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि in which vitamins the cobalt metal present. So what is the name of that vitamin? Is the vitamin B12. यहाँ क्या है मेटल? कोबाल्ट है, CO. ठीक है ना, ये याद रखना, ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस. ओके, so you must keep in mind where it is present. So the metal cobalt in the vitamin 2 is coordinated with the tetrapyrrole ring. अब ये इस रिंग्स के साथ बंधा हुआ है, देख ही रहे हो, coordinated with the tetrapyrrole ring. ओके, एंड कॉल्ड कोरीन रिंग. अब ये देखो कोरीन रिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. ये किसके साथ बंधा हुआ है? बोला कोरीन रिंग के साथ, कोरीन रिंग. तो दो क्वेश्चन आपको दिखा यहाँ पे, एक तो कोरीन रिंग के ऊपर क्वेश्चन है, दूसरा कौन सा मेटल है जो यहाँ पर है अवेलेबल प्रेजेंट, दैट इज कोबाल्ट. So there are two terms you should keep in mind. One is Corine ring, which is present here, and another one is the metal which is present is cobalt, cobalt CO. Plus 3 charges है यहाँ, positive charges. Okay. Now, what are the basic sources of the vitamin B12? Again the same sources. विटामिन के जो सोर्सेज हैं, ईस्ट मिल्क, एग योक. यहाँ एग योक इज अगेन इंपॉर्टेंट. ओके, cereals, grams, this is again important for vitamin B12 and fishes. अब यहाँ देखो, इसके डेफिशिएंसी से इंपॉर्टेंट है, यहाँ डेफिशिएंसी डिजीज भी क्वेश्चन पूछता है. डेफिशिएंसी डिजीज उसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया. पर्नीशियस एनीमिया. इसके पहले आपने पढ़ा था हेमोलिटिक एनीमिया, यह है पर्नीशियस एनीमिया. ठीक है ना. क्या होता है इसमें? आरबीसी डेफिशिएंट इन द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कम रहता है तो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी कम होती है, नोन एज पर्नीशियस एनीमिया. तो एनीमिया में भी डिफरेंट फॉर्म है, पहले हेमोलिटिक पढ़ा था, यहाँ पर्नीशियस बोला है. ठीक है. तो what happen in the RBC, the amount of hemoglobin is less. Okay, so in RBC, red blood cells, the amount of hemoglobin is less. Pernicious anemia. Okay, this is again very important disease, you must keep in mind. बहुत repeated question है. Pernicious anemia, rickets, night blindness, xerophthalmia. Okay, these are very okay. अब देखो, last in this vitamins is vitamin C. अंतिम यही है. इसे ascorbic acid कहते हैं. You all know it is water soluble, last category of water soluble vitamin, ascorbate or ascorbic acid. Okay. अब देखो काम क्या है इसका. फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन.
So collagen is a fibrous protein with a myriad of connective and supportive function. ये कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. कोलेजन क्या है? फाइब्रस टिश्यूज. तो क्या आपके जो गम होते हैं, आपके जो मसूड़े होते हैं, जो दांत पकड़ के रखे हैं आपके, यहाँ पे कोलेजन फाइबर है. कोलेजन इज अ फाइब्रस मॉलिक्यूल, ये फाइबर है. और कोलेजन, अब ये क्या होगा, ये दे हेल्प इन, दे सपोर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन. As there is a deficiency of this disease in your diet, तो क्या होगा? The collagen loosen. अब इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो gums से started loosening और gums से bleeding होने लगेगा. The disease is known as scurvy. बीमारी का नाम क्या होता है? Scurvy. So what is the deficiency disease? Deficiency disease, scurvy. And what happened in scurvy? Loosening of gums, loosening of teeth कह सकते हो, teeth, and decay of teeth and gums, and bleeding also, bleeding from gums. आपके मसूड़ों से bleeding होना. क्यों? क्योंकि कोलेजन फाइबर बिल्ड करते हैं. याद रखिएगा, कोलेजन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सोर्सेस है साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, माल्टा, लेमन. ठीक है ना? जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज, वो सारे उसमें ये मिलता है. So this is all about the vitamins. I had covered all the vitamins and the associated deficiency diseases. So ये you have to make a chart and I will give you, and you have to remember. What you have to remember? First, the chemical name. Second, what you have to remember? The sources. Third, what you have to remember? The important function. The majority of enzymes act as a coenzyme, okay, and perform in a various reactions. तो मैंने अभी जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP के फॉर्म में मिलता है, या NAD या NADPH में निकोटीन और निकोटिनामाइड, एनेडिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD राइबोफ्लेविन, विटामिन B2. ऐसा आपको याद रखना है. B9 फॉलिक एसिड, ओके, B7 द बायोटीन, B6 पायरिडॉक्सिल और पायरिडॉक्सामाइन, B12 साइनोकोबालामाइन, because cobalt group is there, cyanide is there, cyanocobalamine has cyanide, and cobalt is there, as well as porphyrin rings are there in which the cobalt is associated. तो मैंने इसलिए ये स्ट्रक्चर देखा है, इसका कोई सेंस नहीं है, बट ये एक आइडिया देता है कि हाँ इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं इन to this biomolecules. और फिर फाइनली डेफिशिएंसी डिजीज, एज यू नो, लास्ट ईयर आई थिंक स्कर्वी हैज बीन आस्क्ड. नहीं, स्कर्वी आया था ना पिछले साल, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है. ठीक है, द क्वेश्चंस केम ओवर स्कर्वी. तो देयर इज अ चांसेस दैन अनदर डिजीजेस में अपीयर. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ये है. अब यहाँ पर मैंने देखो एक डिफरेंसेस दिया है. बार बार ये टर्म आता था, कोएंजाइम, कोफैक्टर्स. तो पता होना चाहिए क्योंकि ये टर्म्स आएंगे एग्जाम्स में, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट. कभी आए ये टर्म्स तो कैसे हम कंफर्टेबल फील करें. ठीक है ना, इफ़ बायो बैकग्राउंड नहीं है तो. So what I have mentioned here, that what are the cofactors. क्या फैक्टर वर्ड है और एक कोएंजाइम्स वर्ड है. ठीक है ना. So what I have defined here, the cofactor essentially act as an enzymes and it is known as chemical teeth. It acts as an enzyme. Enzyme क्या है? कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शंस कराने के. Now cofactor can be divided.
essential ants and coenzymes. There are two types. Further, essential ants, activator ants, ये लूजली बाउंड होते हैं, एंड मेटल एंड्स और मेटालो एंजाइम्स कहते हैं टाइटली बाउंड. जैसे मेटल एंड्स अभी कोबाल्ट था, बाउंड था, ठीक है ना. तो दिस आर द कोफैक्टर. कोबाल्ट इज अ कोफैक्टर, ये बाउंड है टाइटली. अभी आपने देखा कोबाल्ट को किस विटामिन में, विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, नेम ही है कोबालामाइन, उसमें ये कोबाल्ट था. तो द कोबाल्ट इज अ कोफैक्टर बिकॉज यहाँ मेटल साइंस होते हैं ऑफ द मेटेलो एंजाइम्स, टाइटली बाउंड होते हैं. तो आपने देखा था कि वो रिंग्स के साथ बाइंड था, ठीक है ना. हियर देयर इज अ रिंग्स टाइटली बाइंड. बट ये जो एक्टिवेटर आयंस होते हैं ये लूजली बाइंड होते हैं. तो एक तरह के कोफैक्टर क्या है, मेटालो एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जिसमें मेटल्स हो, ठीक है ना. तो अभी जैसे B12 में देखा कोबाल्ट. अभी दूसरा को एंजाइम, इसमें भी दो हैं, को सबस्ट्रेट लूजली बाउंड एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं टाइटली बाउंड. जैसे अभी आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स, ठीक है ना, इन द रिएक्शंस, तो उसमें आप देखेंगे कि कई तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना. तो एक एसोसिएटेड ग्रुप्स होता है साथ में. आयरन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन देखते हो, हेमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन एसोसिएटेड विद मायोग्लोबिन. मायोग्लोबुलिन पिगमेंट जो होते हैं मसल्स में मिलते हैं, उसमें भी आयरन होता है, ठीक है ना. तो ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसे पिगमेंट और ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर कि टाइटली बाउंड ग्रुप होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स के फॉर्म में. काम क्या है इनका, कोफैक्टर्स का, कैटलिस्ट का काम करना, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना. मैंने कहा एसेंशियली एक्ट एन एंजाइम एंड इट केमिकल डेथ बिकॉज एंजाइम्स क्या करते हैं, दे रेगुलेट द फंक्शन, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट. अब देखो यहाँ एक चार्ट है, जो विटामिन्स हैं जो अभी हमने पढ़ा उसके कुछ कोएंजाइम्स हैं एंड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल ग्रुप्स ट्रांसफर्ड, ये ग्रुप ट्रांसफर करते हैं. जैसे बायोटीन, B7 के बारे में बात किया, ठीक है, डाइटरी प्रिकर्सर इन मैमल, ये मैमल के डाइट्स में मिलते हैं, अभी मैंने डिस्कस भी किया. इसका काम क्या है, CO2 को ट्रांसफर करना, डीकार्बोक्सिलेशन. बायोसाइटिन को एंजाइम है, ठीक है ना. तो बायोटीन का, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, द मेनी वाइटामिन्स आर को एंजाइम प्रिकर्सर्स, ठीक है ना, ये कोएंजाइम के प्रिकर्सर्स हैं. पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम A, ठीक है. विटामिन B12, तो यहाँ डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामाइन. आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, केवल 2-3 बातें याद रखनी है. जैसे राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 के बारे में मैंने बताया था, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसी को FAD कहते हैं. तो FAD इज द प्रिकर्सर ऑफ फ्लेविन, ठीक है. आगे भी मैंने बताया था थायमीन का, थायमीन पायरोफॉस्फेट, TPP, थायमीन. फॉलिक एसिड का भी है प्रिकर्सर, ठीक है. पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन का भी है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. निकोटिनिक एसिड का भी मैंने बताया था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD कहते हैं इसको. तो ये मैंने डिस्कस किया है. तो ये सारे इनके, तो मैंने बताया था थायमीन का, TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, याद रखने के लिए. निकोटिनिक एसिड का निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसे NAD कहते हैं. और डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट लग जाएगा तो NADP हो जाएगा. और अगर ये रिड्यूस्ड हो गया, हाइड्रोजन लग गया, तो रिड्यूस्ड हो गया. राइबोफ्लेविन, ठीक है ना. तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD के फॉर्म में होगा या FMN के फॉर्म में होगा, ठीक है. ये मैंने बताया था, ठीक है. विटामिन B12 आपको केवल 2 ही चीज़ें याद रखना है. इट एक्ट एज अ कोएंजाइम, यहाँ कोबाल्ट एज अ फैक्टर है, कोरिन रिंग है इसमें, कोरिन रिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें. बायोटीन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये एंजाइम नहीं पूछता कोएंजाइम. हाँ, पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम A, कभी रेयरली बहुत टफ क्वेश्चन बना है तो ये पूछ सकते हैं.
तो इनके नेम में ही है राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, थायमीन, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं पीछे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो एफएमएन और एनएडी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग यू मस्ट कीप इन माइंड द केमिकल नेम और इन्हीं का प्रिकर्सर, ये कोएंजाइम्स के, इनसे ही बनता है ये कोएंजाइम्स, ठीक है ना। नाउ so this is all about enzymes. Is there any doubts? आपको कोई doubts है तो you may ask. Any doubts? I can give you.